Welcome all to this corporate briefing session 2021, and we start with the main slide, our introduction. So everyone, you must be knowing Shazan International Limited. It's a public listed company, and it's been listed since 1989. And we have 3 manufacturing facilities. Uh, the main head office is in Lahore. Then we have a manufacturing facility in Karachi, and then we have a factory in Hattar. And we deal in the FMCG products. Our main product line is the juices line, which comprises of almost 80% of our revenue is based on our juices line. And the remaining 20% comprises of jams, ketchups, squashes, and syrups and pickles, a wide range with different sizes, different flavors. So overall, our turnover is approximately around 7 billion. You can say 7 to 8 billion annually. And next, please. This in 6 years review, this information is already mentioned in our balance sheet. You must have all seen this. And I think while giving you the answers in the question and answer session, I think if anyone wants to ask anything about this, I can answer that. So these are the numbers. The last year was a bad year for us, and before that we were performing really well. You can say consistent in terms of income, but the profits were somehow sometimes satisfactory, sometimes lesser than last year. But overall, it was a consistent, you can say, the growth in terms of sales and the profits. Next, please. Our public information relating to the 9 months accounts have already been on the stock exchange, and you can see a bit turnaround from last year. The last year, as I have already said, it was a very bad year for us, but due to consistent efforts and few corrections, we have turned around the company once again. And this year, this is a profit year, and we hope to close the year with a good number, much better than. Obviously, last year was a loss year, but this year it will be a good profit number. Next, please. The future is a bit good, but we have challenges. We have the main problem is the COVID. You can see in COVID, uh, due to closure of various outlets such as schools, canteens, and marriage halls, public places, parks. So we are having a lot of challenge there, as we cannot tap these markets. So, but still on the other avenues, we are focusing on exports. On the export side, we have a growth, and it's a significant growth from last year, and we hope to continue with the good numbers, double-digit numbers this year also. The sales would be slightly lesser than last year, but the profit for this year will be much better from the last year. Next. It's a very brief presentation, and we can answer your questions. And yes, Mr. Hassan wants to say something. Thank you so much, sir, for the presentation. I will now open the question and answer session, starting off with Hassan. I'll unmute you. Please continue with your questions. Assalamu alaikum, sir. This is Hassan Raza from NBP Funds. Sir, there are quite a lot
if you can just elaborate on the juice industry in Pakistan. For example, what is the total industry size, or what has been the growth in the last 5 years, or how has your market share performed over the last 5 years? If you can comment on it. इसका जूस इंडस्ट्री का जो मेन आपको पॉइंट है ना, देखें जूसेस के अंदर बहुत सारी पैकिंग्स इन्वॉल्व हैं. जैसे हम अब बात करते हैं तो हमारी जूस इंडस्ट्री के अंदर वी हैव रिटर्नेबल बॉटल्स, वी हैव नॉन रिटर्नेबल बॉटल्स, वी हैव टेट्रा पैक पैकेजिंग. सो दी 3 कॉम्पिटिशन. ये इसके साथ अगर हम देखें तो ओवरऑल इसको गेज करना जरा मुश्किल है. टेट्रा पैक की साइड का डेटा तो हम शायद थोड़ा बहुत आपको बता सकते हो, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा. लेकिन अगर हम इसको बॉटल साइड पे देखें या एनर साइड पे देखें तो ये डाटा जो है ये मुश्किल है हमारे पास इस वक्त. इसका कोई ऐसा डाटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है. बट जहां तक रह गया शेयर का ताल्लुक, तो हमारा शेयर ये पिछले 1 साल में तो डिक्रीज हुआ है. इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारा शेयर थोड़ा डिक्रीज हुआ है. और इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स बहुत ज्यादा ऐड हुए हैं, और काफी नए प्लेयर जो पिछले 4-5 सालों में आए हैं उन्होंने काफी इसमें शेयर लिया है. हमने मेंटेन जरूर करने की कोशिश की है. पिछले 4-5 साल मतलब लास्ट ईयर से पीछे की अगर हम जाते हैं तो हमारा ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन ये लास्ट ईयर हमारा जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा. तो इसका जेनेरिक मतलब मैं आपको आंसर दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप प्रिसाइज नंबर्स की बात करें तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा आपसे इस वक्त. उसकी अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन की प्रॉपर नहीं है हमारे पास, और ना ही हम आपको इस तरह से अभी इस वक्त दे सकेंगे. जी हमारी तो ये टेट्रा पैक पैकेजिंग है, उसका नंबर हमारे पास कंसाइज होता है. बिकॉज ग्लास बॉटल में ना द वर्ल्ड इज नॉट मतलब उसमें कोई वो यूनिवर्स नहीं है. तो टेट्रा पैक में इन द 20s की रेंज में हमारा मार्केट शेयर है, एंड मल्टीनेशनल्स आर हायर देन दिस इन द टेट्रा पैक कैटेगरी. जी सर, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट you've shown in the slide, ये जैसे I can see Happy Farms, I can see 250 ml SKU of Shizan Mango. So कौन सा प्रोडक्ट आपका सबसे ज्यादा सेलिंग प्रोडक्ट है? इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कंप्राइज करता है आपके रेवेन्यूज को? So it's the Tetra Pak that you see जिसमें रेड और वाइट कलर है. कोई है लेजर या वो पॉइंट कर दो जरा. जैम के साथ जो डब्बा है ना, ये सबसे ज्यादा है. और इसके साथ ये जो ग्लास बॉटल्स हैं 2, ये दोनों अपकमिंग है, इनमें अच्छी ग्रोथ आ रही है. So the glass bottle is a good growing category, and this box, the white and the red box, this is the biggest seller. सही. So you've mentioned कि ये हैप्पी फार्म्स वगैरह अभी हमने बस लॉन्च करना है नेक्स्ट मंथ से ना. ये नया ब्रांड है, ये लॉन्च होएगा बिकॉज नाउ इज द टाइम टू एडवर्टाइज एंड मार्केट. सो नेक्स्ट मंथ से एक न्यू ब्रांड भी आ जाएगा. मेंशन कि कोविड की वजह से और उसकी वजह से जो काफ़ी सारे आपके जो सेलिंग पॉइंट्स थे, एग्जांपल पार्क्स हो गए, स्कूल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, वो सब क्लोजर था, तो आपकी सेल्स हर्ट हुई ऑब्वियसली. दैट इज अंडरस्टैंडेबल. बट सर मैं उससे पीछे भी अगर मैं देखूं तो सिंस 2017 मुझे कोई टॉप लाइन ग्रोथ नजर नहीं आ रही है. यानी कि वॉल्यूम्स, आई डोंट नो अबाउट वॉल्यूम्स, बट रेवेन्यूज हैव रिमेन्ड स्टैग्नेंट सिंस 2017. तो सर कोविड से पहले क्या चीज थी, क्या चैलेंजेस थे कंपनी को जिसकी वजह से सेल्स बढ़ नहीं पा रही थी? और एक चीज जो हम सुनते हैं मार्केट से कि इज इट बिकॉज ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी ऑन अकाउंट ऑफ सेक्ट और रिलीजन, ये चीज है जिसकी वजह से थोड़ा सा पब्लिक में एक्सेप्टेंस कम होती जा रही है आपकी प्रोडक्ट्स की? ये क्या मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप समझते हैं कि आपके रेवेन्यूज बढ़ नहीं पा रहे हैं? So, हमारा ना फ्यू इयर्स अगो हमारा अफ्रीका में बहुत एक्सपोर्ट होती थी. तो ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे एक्चुअली अंगोला वाज द कंट्री, वहाँ हमारी बहुत एक्सपोर्ट होती थी. तो ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे ना द करेंसी क्रैश, तो वो हमसे वाइप आउट हो गया ओवरनाइट. तो ऑल दो टॉप लाइन में वो नहीं नजर आता. सो हमने वो सारी जो अफ्रीका की वाइप आउट था वो पाकिस्तान लोकली 2-3 साल में हमने उसको कवर अप किया. सो वी वर लकी इनफ के इतना बड़ा मार्केट हमसे निकल गई, बट वो हमने लोकली कवर अप कर दिया. एनीवे उससे हम निकले ही थे, तो ये जरा कोविड और इस तरह की चीजें थोड़ी आ गई थी. वो जो आप कह रहे हैं वो इतना बड़ा इशू नहीं है. उसमें हॉटस्पॉट्स होते हैं, कई जगह बहुत हो जाता है, बट एज ए कंपनी एट लार्ज न्यूसेंस वैल्यू ज़्यादा है.
बट और कई पॉकेट ज़रूर है, बट पाकिस्तान इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अभी भी हम अगर ज़रा सा सो दैट्स नॉट सच अ बिग डील, और उसको क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब नोबडी कैन रियली टेल अस कि इस प्रॉब्लम का एक तो सोल्यूशन भी नहीं है, और दूसरा इसको क्वांटिफाई करना ज़रा मुश्किल है। बट कई जो बहुत हॉट एरियाज हैं वहाँ पे हमारी कई बार बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, और लिबरल एरियाज में कई बार इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती, तो ये नंबर्स भी उस तरह मैच अप नहीं करते। सो वी जस्ट फील के शुरू में ना मल्टी नेशनल्स वगैरह में बहुत स्ट्रेंथ थी, बट नाउ लोकल प्लेयर्स आर गेटिंग बेटर, क्वालिटी इज इम्प्रूविंग, people are realizing that local brands are as good as outside brands. So you will notice that local brands should come up now. But to answer your question, वो Africa effect था जिसकी वजह से जरा issue आया था like 4-5 years ago. So how much was this African sale was in terms of rupees? This was around 1 billion rupees, 1 billion annually, approximately. Okay, and सही, but you could not divert it to any other African country back then. नहीं, वो एक ही मुल्क में था, and it's not so easy. मतलब वो बाकी जूस कंपनीज को भी फर्क पड़ा था. It takes a few years to build a market. Sure. And in terms of competition, sir, how is this juice market in Pakistan? I mean, who sets the pricing here? आप लोगों के पास कितनी flexibility होती है to pass on the raw material cost? पाकिस्तान जो है ना is a very hot country, और इधर या कोलाज हैं या जूसेस हैं, so scope तो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए the largest food companies of the world are focusing and coming here. बाकी चीज़ों में they're not that focused, but इधर they are coming. तो हमारा मल्टीनेशनल से बहुत है, ये जो पेप्सिको से काफ़ी सिवियर कंपटीशन है, नेस्ले से काफ़ी सिवियर कंपटीशन है, एंड इनको बीट करने के लिए वी हैव टू मार्केटिंग वगैरह करनी होती है, विच वी गोना स्टार्ट इन दिस ईयर. 1-2 साल का हमने ज़रा लाल पीरियड गुजारा है, एंड देन असल चीज़ इसमें होती है टेस्ट, एंड पाकिस्तानी ना एक तो टेस्ट we feel हमारा जो टेस्ट एडवांटेज है relative to the other brands, because we know the local taste better. So उसमें we have an advantage. And how easy is this for you to pass on the raw material costs? या आप price taker होते हैं instead of price setters? How does this industry works? ये जो प्राइस का है, ये प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट्स है हमारी, सच अगर देखा जाए तो वेरी मच प्राइस सेंसिटिव, और इसके जो बैरियर्स हैं वो क्वानिस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. लेट्स से अगर हमने प्राइस बढ़ानी है, किसी एक छोटे से SKU की बात कर रहे हैं, अगर उसकी 20 पीस प्राइस पॉइंट है फॉर कंज्यूमर, तो ये अगर उसे आप 1 रुपये या 2 रुपये बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है मार्केट में. वो क्वानिस का फैक्टर बड़ा वैलिड फैक्टर है, या 20 से 25 होगा या 25 से 30 होगा. अगर हम कहें कि जी कंज्यूमर 22 दे या 23 दे, तो वो मार्केट में प्राइस चलती नहीं है. और अगर इकट्ठा 5 रुपए बढ़ाएं तब भी इशू आ जाता है कि एक कंज्यूमर 20 से 25 किस तरह अफोर्ड करेगा, क्योंकि ये मासेस की प्रोडक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका हमारा मेन वॉल्यूम है 250 ml का. इसके अंदर मासेस बहुत ज्यादा इसको लेते हैं, तो उनके लिए 5 रुपए का एक फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉस्ट प्रेशर्स हमें ही लेने पड़ते हैं. बहुत कम चांसेस होते हैं कि जब हम प्राइस बढ़ा सकें. उसमें भी है कि अगर मल्टीनेशनल लीड कर रहे हो तो थोड़ा सा रूम मिल जाता है हमें, लेकिन वाइस वर्सा जो हमारे अननोन ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि आप समझें कि ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्राइस कंपटीशन में आते हैं, कट थ्रोट प्राइसेस पे आ जाते हैं, जो कि टैक्सेस को वेट करते हैं, उसकी वजह से वो प्राइस नीचे रखते हैं. तो हमें दोनों तरफ से ही एक तरह का थ्रेट होता है, नीचे वालों से भी थ्रेट है और ऊपर वालों से भी है. तो ये बड़ा एक डिफिकल्ट सा हो जाता है टाइम्स हमारे लिए. Sure. Sir, in terms of costing, फिर since आप थोड़ा सा pricing के ऊपर थोड़ा सा कंपनी important और cost controls बहुत relevant हो जाते हैं. So in terms of costing से थोड़ा सा तो बताइएगा कि रॉ मटेरियल कॉस्ट में मेनली कौन सी कॉस्ट होती है. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द फ्रूट कॉस्ट दैट यू प्रोक्योर, शुगर कॉस्ट होती है, पैकेजिंग कॉस्ट होती है. दो चीजें रॉ मटेरियल साइड पे देखें ना, रॉ मटेरियल साइड पे अगर हम आते हैं तो एक तो फ्रूट की कॉस्ट है, फ्रूट एंड फ्रूट पल्प्स इन अदर वर्ड्स, और दूसरी तरफ है शुगर. शुगर इज द मतलब बहुत की इंग्रेडिएंट है हमारी प्रोडक्ट लाइन का. तो शुगर के अंदर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन वो आपको पता है जो शुगर की प्राइसेस पाकिस्तान में इस तरह से चलती हैं
तो उसके अंदर वो तो मार्केट बेस्ड है, डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, जो भी होगी उस पर प्राइसिंग डिपेंड कर रही होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि सीज़न की शुरू में अच्छे कॉन्टैक्ट्स कर लिए जाएं, रीजनेबल प्राइसेस पे पूरे साल के कॉन्ट्रैक्ट कर लें, 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट कर लें, उसमें जो शुरू में एज मिल जाएगा वही एज होगा। और वो भी पेमेंट टर्म्स उसके ज़रा तो ये होते हैं कि एडवांसेस दिए जाए ताकि आप अपना एक फिक्स अमाउंट ब्लॉक कर लें। उसके ऊपर थोड़ा सा हमारे पास क्वेश्चन होता है कि हम उसमें प्ले कर लें। जहाँ तक कि ये F&B प्राइसेस है, फूड एंड वेजिटेबल, अगेन मार्केट बेस्ड प्राइसेस हैं, डिमांड सप्लाई बेसिस पे, बस यही इसके अंदर है। इनके अंदर जो हमें जो लीवरेज है ना, बहुत कम लीवरेज मिलता है इसके अंदर हमें दोनों चीज़ों में। पैकेजिंग साइड पे आ रहे हैं, अगेन पैकेजिंग के अंदर मेन जो कॉस्ट है ये टेट्रा पैक पैकेजिंग है या ग्लास की पैकेजिंग है, ये भी बड़ी महंगी है। इनके अंदर भी प्राइस डॉलर जरा सा डिवैल्यू होता है तो इम्पोर्टेड जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उनकी वजह से ये टेट्रा पैक की प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये काफ़ी चैलेंजेस हैं कॉस्ट वाइज हमें इसको। हाउएवर कई चीज़ें हैं, जैसे हम ना रॉ मटेरियल जो लेते हैं उस पे वी कैन रियली एंड वी मेड अ लॉट ऑफ इनरोड्स। सोशल मीडिया फेसबुक का बहुत फ़ायदा हो गया है। सो नाउ वी बाय अ लॉट फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम द फार्मर्स, यू नो, लोधरा से डायरेक्ट हो गए हैं। सो जो रॉ मटेरियल है, जो फ्रूट है, जो स्पाइसेस हैं, उसमें वी वर्क वेरी हार्ड द लास्ट 2 years एंड उसमें हमने काफ़ी, इफ़ यू लुक एट आवर बैलेंस शीट ऑल्सो, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। बट जो बाकी चीज़ें ना, टेट्रा पैक, ग्लास बॉटल, शुगर या इम्पोर्टेड आइटम्स, इसमें तो यू नो देयर इज नॉट मच ग्राउंड जिसको हम मतलब देयर इज नॉट मच वी कैन डू। प्लास्टिक पैकेजिंग भी। हाँ, बट ये रॉ मटेरियल में हमने काफ़ी किया है रिसेंटली एंड अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू डू विद सोशल मीडिया कनेक्टिविटी। फेसबुक में फॉरम्स हैं, एग्रीकल्चर फॉरम है ना, उससे आप डायरेक्ट हो जाते हैं। सो उसका वो बहुत एडवांटेज, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है। सो इन टर्म्स ऑफ ब्रेकअप आप कुछ स्पेसिफाई कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल कॉग्स का कितने परसेंट फ्रूट्स एंड स्पाइसेस होगा, कितने परसेंट पैकेजिंग होगा और कितने परसेंट शुगर कॉस्ट होगी आपकी? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इतनी सारी प्रोडक्ट साइजेस है, इतनी सारी प्रोडक्ट रेंज है, ये मुझे कमेंट करना आसान नहीं है। So like for example in Tetra Pak, packaging will be around 50% and बाकी चीज़ें will be around 50% also. क्योंकि Tetra Pak packaging बहुत महंगी है, इसीलिए you will see many brands have shifted from Tetra Pak and gone towards Chinese paper and you know other kinds of paper. So it's very difficult to answer this, but Tetra Pak में मैंने आपको जैसे example दे दिया है कि वहाँ पे packaging 50 to 60% भी शायद 55% तक आ जाएगा। But in the other thing, raw material का ज़्यादा cost होता है. Packaging obviously is maybe in the 20s range. So you also have this flexibility to work around this packaging cost. आप यानी कि इसमें एक ही जनरली चलती है आजकल, जो आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई लीटर आइटम है, फर्ज करें उसकी पैकेजिंग लीटर की है, तो आप उसका जो पैक साइज है उसको कम कर लें, वो 950 कर लें, 900 ग्राम्स कर लें, प्राइस सेल प्राइस उसकी ना छेड़ें और आप थोड़ी सी पैकेजिंग में और उसकी जो प्रोडक्ट के जो वेटेज है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके मार्जिन को डेवलप करें। ये एक टेक्निक आजकल बहुत चल रही है, इस पे हमने कुछ प्रोडक्ट्स पे तजर्बे किए हैं, सक्सेसफुल रहे हैं, जिससे थोड़ा सा मार्जिन इंप्रूव कर रहे हैं हमारे। Sure. And so there was recently we've read in the newspapers that fruit market में wholesale level के ऊपर there has been a substantial decline on a yearly basis. So ये आपके लिए भी it holds true for your company और आपकी procurement cost for the next season compared to last year सस्ते rates के ऊपर हुई है या is it the other way around? जो हमारा की रॉ मटेरियल है, जो इस साल की बात कर रहे हैं, वो हमारा जैसे मैंगो है, मैंगो पल्प है, हमारी की पल्प जो होती है, इस साल उसकी प्राइसेस लास्ट ईयर से बेहतर हुई हैं। बट ये इसमें गवर्नमेंट का कोई फैक्टर नहीं है, ये किसी और का नहीं, ये बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड, अगेन जो यील्ड है इस साल की क्रॉप की वो अच्छी है लास्ट ईयर से, तो लिहाजा प्राइसेस अच्छी मिल गई हैं। लेकिन ये फिनोमेना हर साल वेरी करता है, ये और ये हर उसके साथ होता है, ये टमाटर के साथ कभी कुछ और होगा, कभी किसी और के साथ, मतलब ये डिफरेंट होता है हर चीज़ ज़्यादा। मतलब वो कहते हैं ना लॉ ऑफ एवरेजेस, 5 साल में वो चलता रहता है। बट इस साल मैंगो का रेट बहुत अच्छा, बेटर देन लास्ट ईयर था, बिकॉज क्रॉप अच्छी थी। And it is the dominating flavor, मैंगो का dominating flavor है सर आपका, और second यानी और कौन से flavors हैं आपके in terms of top 2 top 3 flavors में से? So by far mango number 1 है, like
it's so far ahead कि number 2 you know you'll have to मतलब वो बहुत पीछे है. Number 3 is maybe Apple, but mango is by far the leader. Pakistanis are very mango calm, you know, everyone just likes mango juice. या coke पीते या mango juice पीते, I mean I don't know. Sure. And so, in terms of sugar, since it's also a major component of your cost, so how much is your annual sugar consumption or requirement? Given के average जो आपका एक product mix है, product slate है, आपका उस हिसाब से annual कितनी demand है आप लोगों से sugar की? Between 15,000 से 20,000 metric ton roughly. Per annum. जी per annum. And sir, what was the weighted average rate of procurement for FY21 sugar? किस साल की बात कर रहे हैं? सर जो गुजर चुका है 21. मैं आपको ये जून के बाद जब हमारे एनुअल की होगी ना उसमें आप क्वेश्चन रेज करें फिर आपको बता देंगे उस वक्त चेक करके. अभी चूंकि 9 मंथ्स की फिगर्स पब्लिकली अवेलेबल हैं उसके देख के मैं किसी को बता दूंगा. अभी मेरे सामने नहीं है इस वक्त. Sure. And sir, अभी recently बजट के अंदर में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं. फॉर एग्जांपल इसमें सबसे की डेवलपमेंट तो हुई थी FAD was perhaps removed and there were another few other developments जिसमें कुछ उन्होंने import duties कुछ syrups के ऊपर और इस तरह की जो raw materials हैं उसके ऊपर कम किए. So sir, what has happened in the budget really for your company? और how do you see the impact, especially FAD को किस तरह से देखते हैं? फैक्टर है जो है हमारी कंपनी के लिए एक ही फैक्टर है वो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी का. ये 2 साल पहले लगी थी, जुलाई 2019 में लगी थी और लास्ट ईयर भी हमने इस पर काफ़ी वर्किंग की थी. उस वक्त पहला साल था उसके लगने का और पहला ही साल था कोविड का. तो दोनों सूरतों की वजह से वो उन्होंने गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था. लेकिन इस साल अगेन हमने बड़ी एफर्ट्स की एज ए होल इंडस्ट्री ने. तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि इसकी वजह से क्वान्टिटेटिव डिक्लाइन भी इसकी वजह से भी है और कोविड की वजह से भी है. तो इस वजह से गवर्नमेंट ने इस साल इसको बिल्कुल अबॉलिश कर दिया है. तो ये 5% है हमारी जूसेस, स्क्वाशेस और सिरप के ऊपर. ये अबॉलिश हो गई है और 1 जुलाई ऑनवर्ड से ये ख़त्म हो चुकी है अब दोबारा. ये 2019 में लगी थी, 1 जुलाई 2019 को. 2 साल कंटिन्यू की है. Sir, how do you see its impact in the market? आप समझते हैं कि जो प्लेयर्स होंगे वो अपनी प्राइसेस अकॉर्डिंगली रिमूव कर देंगे या प्राइसेस मेंटेन रहेंगी एंड री इन्वेस्टर और बाकी चैनल्स के ऊपर डेवलप किया जाएगा? डिपेंड करेगा. इट्स टू अर्ली टू से. डिपेंड करता है. आई डोंट नो ये मार्केट कैसे बिहेव करेगी इसके अंदर और हर एक का अपना डिसीजन होता है. यू नेवर नो कि कौन कैसे सोच रहा है, कैसे चल रहा है. अभी स्टार्ट है, हो सकता है आगे चल के कुछ करें ना करें, डिपेंड करेगा. सर कोई ड्यूटीज रिडक्शन का भी कोई बेनिफिट मिला है कंपनी को? नहीं, ड्यूटीज का कोई खास बेनिफिट नहीं है. कोई सेल्स टैक्स चेंज भी नहीं है अक्रॉस योर प्रोडक्ट्स? कोई चेंज नहीं है. नो चेंज इन सेल्स टैक्स. सर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, हाउ मच ऑफ योर कॉस्ट्स आर इंपोर्टेड? इंपोर्ट बेस्ड कॉस्ट कितनी है आपकी? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर मैं बॉलपार्क नंबर पूछूं, 20% ऑफ योर कॉस्ट आर इंपोर्टेड और नहीं से 30%? ये सिंगल डिजिट के नंबर्स में. सिंगल डिजिट. फॉर एग्जांपल जैसे सिरप्स मंगवाते होंगे या एसेंस मंगवाते होंगे या सिरप्स बाहर से कोई नहीं आते. नहीं, सिर्फ फ्लेवर्स आते हैं. कोई फ्रूट पल्प मतलब हार्डली आता है. शायद लेमन थोड़ा सा आता है फॉर लेमन स्क्वाश. एनीवे सिर्फ फ्लेवर्स बाहर से आते हैं विच आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव. पैकेजिंग भी मोस्टली लोकल है. सिंगल डिजिट में होगा. श्योर. एंड सर एक आप लोगों का एक अरेंजमेंट था विद शिजान सर्विसेज. सर वो एक्सपायर हो गया था आई थिंक दिसंबर 2020 में. सर हैज दैट बीन रिन्यूड? कोई उसके ऊपर अपडेट है और किस ये तरह वैसे नेचर क्वेश्चन ऑफ? बड़ा स्ट्रेंज किस्म का क्वेश्चन है और मुझे हैरानगी है. मुझे किसी और ने भी बताया, मेरे कॉलीग ने, कि somebody was asking this question. बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है. एक रूटीन का मैटर है और ये साल से चल रहा है. ये शिजान सर्विसेज का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है रॉयल्टी का, और ये तकरीबन पिछले 50 साल से है और ये चलता ही रहना है. इसके ऊपर आई डोंट नो कि क्वेश्चन मार्क क्यों आया. ये रिन्यू हो चुका है, कोई इशू नहीं है और ये होता रहेगा. ये 5 साल के लिए होता है. श्योर. सर एनी न्यू प्रोडक्ट्स इन द पाइपलाइन? आपने एक तो मेंशन किया था एक नया जूस का एक SKU आप ला रहे हैं, नए ब्रांड के साथ ला रहे हैं. एनी अदर प्रोडक्ट्स इन द पाइपलाइन? मेयोनीज ला रहे हैं. पाकिस्तान इज अ वेरी मतलब मेयोनीज की यहाँ बहुत सेल है. सो वी कमिंग विद मेयोनीज एंड जस्ट न्यू ब्रांड्स ऑफ जूस. वो तो पैकेजिंग चेंज की है, थोड़ी एडवर्टाइजिंग करेंगे, बट द न्यू प्रोडक्ट विल बी मेयोनीज
So I think next quarter के end तक आ जाएगी. And it will only be in bulk packaging. We are very strong in restaurants को ना हम काफ़ी bulk में देते हैं चीज़ें, ketchup वगैरह. So वो हमारी बड़ी strong market है. So उसके साथ ये एक sister product आ जाएगी. So mayonnaise is the next product. Okay, and sir, last couple of questions. In terms of revenue growth, sir, since अब कोविड भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा यानी कि severity में कमी आई है, cases have declined significantly, things have opened up, restaurants भी खुल गए हैं, parks और बाकी places भी अब आहिस्ता-आहिस्ता open up हो रही हैं, vaccination drive भी is on full swing. So what kind of revenue growth are you looking at in say next couple of years, for example, or so around 27 to 28%, but in recent quarters and recent years, we've seen that margins have ranged around 20 to 22%. So what are the sustainable margins going forward, and what's the revenue growth target for the next couple of years? मार्जिन्स की जहाँ तक बात है वो तो लगता है कि अभी सस्टेन करेंगे, जैसे अभी आपको नजर आए हैं 9 मंथ्स में मोरलेस इसके करीब करीब रहेंगे. एफईडी का इम्पैक्ट आएगा कुछ ना कुछ, वो देखते हैं कैसे आएगा, वो आप खुद जज कर लीजिएगा. आगे चल के फर्स्ट क्वार्टर के अकाउंट्स के बाद आपको आइडिया हो जाएगा. जहाँ तक ग्रोथ की बात है कि ग्रोथ के अंदर एक साल के अंदर काफी अभी भी चैलेंजेस हैं. जहाँ तक कोविड वाली सिचुएशन है ये स्लाइटली इंप्रूव करती है तो फौरन ही दोबारा डिटेरिएट कर जाती है, तो इसके ऊपर रिलाई करके कोई भी नंबर स्पेल आउट करना मुश्किल है हमारे लिए इस वक्त. बट वील ट्राई आवर अटमोस्ट कि हम जो मैक्सिमम ग्रोथ ले सकें या जो लॉस्ट ग्राउंड है उसको कवर कर सके, वो हम अपने करते रहेंगे इंशाल्लाह. तो लेट्स सी आगे एक साल के बाद, अभी 2 साल के बारे में कहें तो इट्स टू अर्ली. It's a last question. Any price hikes that the company has made since February this year? प्राइस हाइक अभी हमने कोई नहीं किया सच. February के बाद से कोई नहीं हुआ प्राइस? नहीं, कोई नहीं. सही है, सही. Thank you, sir. Thank you. This was all from my side. Thank you so much. Okay, Satish, I'm opening the question for you. Please put forward your questions. Thank you, Fahad, for helping us connect to the management, and thank you, sir, for giving us the chance to ask questions. Sir, मेरे दो ही सवाल हैं. एक तो ये कि आपकी, मैं देख रहा था कि आपने कैपेसिटीज काफी ऐड की थी 2019 में और 20 में प्रोडक्शन कैपेसिटीज. तो मैं समझना चाह रहा था कि एक तो उससे क्या वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ आगे हेल्प कर सकती है? इज कैपेसिटी अ बॉटलनेक फॉर वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ फॉर अ कंपनी लाइक योर, जिसमें टेट्रा पैक की में सबसे फिनोमिनल एक इंक्रीज था? और इसी से लिंक सवाल ये दूसरा भी है कि जो आपकी इन हाउस पैकेजिंग कैपेसिटी है उससे और अगर आप कहीं और से टोल करा लेते हैं उसमें कितना कॉस्ट डिफरेंशियल आपका बच जाता है, या अगर मैं कहूँ कि पैकेजिंग वाली फैसिलिटी अगर आपके पास है वो कितना मार्जिन बढ़ा देती है? जहाँ तक कैपेसिटी की बात है तो देयर इज नो कंस्ट्रेंट, देयर इज नो बॉटलनेक व्हाटसोएवर इन एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स. सेकंड क्वेश्चन आपका कि इन हाउस पैकेजिंग से क्या मुराद है आपकी? नहीं सर, आपकी जो मैं एनुअल रिपोर्ट देख रहा था उसमें टेट्रा पैक कैपेसिटी रिपोर्ट होती है, तो वो टेट्रा पैक की कैपेसिटी जो थी वो 45 मिलियन लीटर्स थी, वो बढ़ा के 70 तक आप ले गए ओवर पास्ट 2 इयर्स. तो वो मैं पूछना चाह रहा था, वो इंक्रीज कितना हेल्प करता है आपकी टॉप लाइन ग्रोथ के लिए? वो बहुत हेल्प करता है. वो पहले प्लान इसलिए किया गया कि सेल्स ग्रोथ अगर होती है तो वो उसको केटर करेंगी वो जो कैपेसिटीज हैं. अच्छा, तो इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ. कितने साल में आप देख रहे हैं कि ये आप 100% यूटिलाइजेशन पे चला जाएगा, ये वाली जो नई फैसिलिटी आपने ऐड की है? ये 3 से 4 साल में. 3 से 4 साल, ठीक है. ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल वो होगा, ये जो एफईडी वाला सवाल वैसे हसन ने किया था बट मैं थोड़ी सी इसमें शायद मिस कर गया. मुझे सिर्फ ये कॉन्टेक्स्ट बता दें कि इसका जो इम्पैक्ट होगा रिडक्शन का अक्रॉस इंडस्ट्री, डू वी सी प्राइस रिडक्शन और डू वी सी मार्जिन एक्सपेंशन? इसी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि कौन कैसे बिहेव करेगा. अगेन ये अभी 1 जुलाई के बाद अभी 4 दिन तो हुए इसको इम्प्लीमेंट हुए. आई डोंट नो कैसे. अभी तक प्राइस रिवीजन कोई नहीं आया, सो अभी तक कोई नहीं आई और इसके बारे में कैसे लोग करेंगे कुछ कह भी नहीं सकते. तो वो कंपटीशन के हिसाब से आप ऑब्वियसली स्ट्रेटजी अपनी चेंज हर एक की अपनी स्ट्रेटजी होगी. वी आर ऑब्जर्विंग वेरी केयरफुली कि बाकी क्या कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली हमारे पास इनसाइडर थोड़ी सी नो हाउ इन द सेंस कि बाकी का ना वो होता है कि व्हाट अदर ब्रांड्स आर डूइंग.
we're going to study what they're doing, and then also we're going to come up with our own strategy. But it's a bit too early क्योंकि अभी 1st July हुआ है, so it's going to take a little time जरा equilibrium आने में. So just another follow-up question on this. वैसे अगर ये strategy मतलब वैसे तो आप obviously बेहतर capacity आपने recently add की है, तो क्या आप प्राइस डिस्काउंट दे के अभी मार्केट शेयर रैंप अप क्विकली कर सकते हैं? मतलब ये पूरा बेनिफिट अगर आप पास ऑन कर दें और आज आप फुल यूटिलाइज और रेवेन्यू ग्रोथ अपने मार्केट शेयर रिकूप ज्यादा स्ट्रांगली कर लें, एग्रेसिवली कर लें, कैन यू डू दैट और डू यू थिंक इट हैज सम रिस्क टू इट? मैंने आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया. आप ये समझे कि ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट है. आपका ख्याल है कि शाज़ान कोई स्टेप उठाती है तो बाकी 4 दिन तक वेट करते रहेंगे? बड़ी जल्दी से इंफॉर्मेशन फैलती है. कोई भी कंपनी कोई भी स्टेप उठाएगी, दूसरी कंपनी अपनी ब्रांड को सामने रखते हुए, एग्जिस्टिंग वॉल्यूम्स को देखते हुए सिमिलर सॉर्ट ऑफ स्टेप भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं. मतलब ये सारा एक दूसरे को देखते हुए चीजें चल रही होती हैं. ये इस तरह से नहीं है कि मैंने कम कर दिया प्राइस और मैंने कैपेसिटी बढ़ाने को वो जो अपना जो वॉल्यूम है उसको गेन करने के लिए प्राइस डिस्काउंट चला दिया मार्केट में और बाकी खामोशी से बैठे रहेंगे. ऐसे नहीं होता नॉर्मली. Okay. So it's a dynamic process which evolves gradually. ये ओवरनाइट भी नहीं होती चीजें कि आपने यहाँ स्टेप लिया तो परसों चीजें बदल जाएंगी. ऐसे नहीं होता. और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इन्वॉल्व है, सारों की इन्वेस्टमेंट हुई होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की स्टॉक्स होते हैं. ये सारे फैक्टर्स देखें तो ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ये 1.5 से 2 महीने ले जाता है. कोई भी आप स्टेप उठाने लगे तो उसका टाइम इतना लग जाता है. उसी दौरान में बाकी लोग भी जो है ना वो अपने अपने डिसीजन ले लेते हैं. तो इतना आसान नहीं है ये कह देना. सही है. ऐसे आप आखिरी सवाल है मेरी तरफ से, सिर्फ मैं उस पर पूछूंगा. आप लोग कहते कि जो ग्लास वाली जो आपकी ड्रिंक्स हैं, ग्लास बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो ग्लास पैकेजिंग वाली, उनमें काफी अच्छा रिस्पांस ऑफ लेट मिला है आपको. सो उसमें मैं समझना चाह रहा हूँ कि वो क्या एज अ कोक कंपटीशन या स्लाइस की कंपटीशन में ही बिक रही होती है, तो उसमें सिचुएशन किस तरह की है? इज इट अ बिगर प्रोपोर्शन ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी या वो एक पायलट प्रोजेक्ट है जो कि ग्रेजुअली बिल्ड हो रहा है? नहीं, इट्स अ गुड हैंडसम मतलब हैंडसम वॉल्यूम्स हैं ग्लास के भी. इट्स नॉट लाइक अ पायलट प्रोजेक्ट. उसकी इट्स मतलब हैंडसम. और उसकी पैकेजिंग भी आपके पास इन हाउस है या फिर उसकी पैकेजिंग आउटसोर्स्ड है? नहीं, ग्लास बॉटल हम बाहर से खरीदते हैं. वी जस्ट फिल इट विद जूस. ओके. ठीक है ना. सो मतलब हम ग्लास के हमारा वो नहीं है, मतलब वी बाय फ्रॉम समवन, हम बस उसमें जूस डालते हैं. बट इसकी अच्छी ग्रोथ है और इसमें एक्सपोर्ट भी थोड़ी अच्छी हो रही है. एंड पीपल आर, पाकिस्तानी मैंगो आपको पता है काफी पॉपुलर है और बाहर जाके वैसे पाकिस्तानियों को भी अपना नॉस्टैल्जिया होता है. तो ये एक ऐसी पैकेजिंग मिल गई है जो कि बाहर के लोगों को भी पसंद आ रही है. तो इसमें मतलब अच्छा ग्रोथ अच्छी है एंड बेस भी रीजनेबल है. सही है. ठीक है. थैंक यू सर. हमारी ग्लास बॉटल है जो छोटी वाली है, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. ये 60 रुपीज की प्रोडक्ट है. इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव. सो यू नो दैट्स व्हाई हम इस पे काफी काम कर रहे हैं, बिकॉज गुड प्राइस है इसकी. Absolutely. ठीक. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Okay, next question comes from Haider Hilali. Kindly unmute. Hi, this is Azam Khan. I'm sitting here with Haider Hilali. We're both joining from CalCorp. Thanks for hosting this call. People have asked most of the questions I want to ask, so I'll just ask the remaining ones. I was trying to get a direction from you with respect to आपकी जो advertising and promotions की expense होती है. ये एक टाइम पे 500 से 600 मिलियन रुपीस की एडवर्टाइजिंग बजट होता था. ये recent years में I think obviously given the market conditions थोड़ा सा curtail हो गया. But I just wanted to get some guidance कि आपका next year का क्या plan है with respect to advertising, and if any PKR values can be associated to that. So PKR value अभी देना मुश्किल है, just because it's just the beginning of the year. अभी like 2 weeks तक everything's going to be next year का the final figures अभी final हो रहे हैं. But yes, this year we are going to do advertising, we are going to do marketing, because आजकल in today's day and age it's very important.
और सोशल मीडिया जो कि इतना महंगा नहीं है उस पर भी हमने स्टार्ट करना है। और वो 1 जुलाई से बेसिकली अभी वो मतलब 1 जुलाई से एजेंसी भी हायर कर ली है। सो आफ्टर लाइक maybe 10 more days you'll start seeing things. So we're going to do everything this year, and we're going to advertise and start मतलब थोड़ा सा हमने above the line शुरू कर देना है और सोशल मीडिया पे स्पेशल फोकस होगा। अंडरस्टूड। ऑब्वियसली सर, क्योंकि अगले साल का बजट तो आई अज्यूम इस पॉइंट पे प्रिपेयर हो गया होगा, इज देयर एनी लाइक directional insight you can give us as a multiple of, let's say, last year's? Well, I guess नहीं वो अभी नहीं दे सकते, और अभी बस वो फाइनलाइज हो ही रहा है। थोड़ा कोविड ईयर में ना थिंग्स आर लिटिल कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, बट अभी वो नहीं, वी कांट गिव यू दैट फिगर राइट नाउ। Okay. Okay, I guess we'll move on to another one. So till 2018 आपके एक cost of goods sold में line item आता था by samples and wastage, जो कि एक add back होता था onto cost of goods sold. I just wanted to know इसकी कोई treatment change हो गई है या ये अब किधर reflect होता है in the cost of goods sold? इसकी रिपोर्टिंग चेंज हुई है या एक्सपेंस तो अभी बुक होता है? पर हम ये बताएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स किधर हम इसको ये मेरे कॉलीग के साथ ये आपको एक्सप्लेन कर देते हैं क्या ट्रीटमेंट है। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दिस इज खुरम बाबर की। ये लास्ट ईयर हमारा एक IFRS 15 इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसकी बेस पे जितना भी रेवेन्यू के रेलिवेंट जितनी भी कॉस्ट थी आपकी, वो आपने कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ही मर्ज करनी थी उसको, यानी कि उसको कॉस्ट ऑफ सेल का ही पार्ट बनाना था। वो ऑडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ सेल में क्लब करना था, इसलिए अब वो जो है फेस ऑफ इट शो नहीं होता आपको, बट इट्स कॉस्ट ऑफ बट इट्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। पहले वो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल में यानी कि वर्किंग में आ जाता था, वहां से उसको पुल आउट करते थे और एडवर्टीजमेंट में क्लब करते थे जाके, लेकिन ये ट्रीटमेंट जो है वो ऑडिटर्स ने चेंज करा दिया, तो अब वो वही कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट ही रहता है, उसी के अंदर ही उसकी फिगर मर्ज है, इसलिए आपको नजर नहीं आती। अच्छा, इधर बेसिकली ये अब आप सॉरी आप कह रहे हैं कि ये सेल्स के नंबर से नेट ऑफ हो जाता है अब, क्योंकि पहले ये ऐड बैक होता था। रहेगी ना फिगर, उसके अंदर ही है वो फिगर, क्लब्ड है फिगर, इसलिए वो सेल से नेट ऑफ हो रही है। सेल से नेट ऑफ हो रही है, अच्छा। जीपी स्टेज के ऊपर ही है वो फिगर, वो नीचे नहीं आई। पहले वो फिगर नीचे आ जाती थी एडवर्टीजमेंट की हेड के अंदर, एनपी से पहले, जीपी के बाद, अब वो जीपी से पहले रह जाती फिगर। नहीं सॉरी सर, पहले जो है ये अगर आप 2018 के कॉस्ट देखें तो उसमें सैंपल्स और वेस्टेज का तकरीबन 300 मिलियन जो है वो एड बैक होता है टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, आई रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब वो 19 और 20 में वो उधर अपीयर नहीं हो रहे नंबर्स, तो आई जस्ट वांट टू नो कि ये किस नंबर में मैं वापस शामिल करूंगा तो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन हो जाएगा। Basically, have you moved it into sales because it was a negative cost of goods sold? So the only place you can put a negative cost of goods sold is if you are adding it to sales. मैं आपकी बात नहीं समझा। मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि ये पहले कॉस्ट ऑफ सैंपल्स जो थे ये हम एडवर्टीजमेंट में लेके जाते थे, कॉस्टिंग का पार्ट बनते थे, वहां से ये कॉस्ट नहीं है जी, ये कॉस्ट नहीं है, ये नेगेटिव कॉस्ट है, यानी कि इट वाज एन एडेड, इट वाज लाइक it was reducing your cost. It was not an expense incurred by the company. It was a line item that reflected a negative expense. Okay, which means either you added it to revenue or it's no longer appearing. ये एक बात है। दूसरी बात है, अगर आप चाहते हैं हम ये ऑफलाइन भी लेके जा सकते हैं कॉन्वर्सेशन, ताकि हमें बाकी ऑडियंस को आप बेशक मुझसे कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, आपने शुरू में मेंशन किया था दैट ऑब्वियसली सेल्स हैज स्टैग्नेटेड बट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड। जनरली इसका ये मतलब होता है कि प्राइस बढ़ा दी गई है, और ये भी एनेक्डोटली भी पता है कि कंपनी ने प्राइस बढ़ा दी है। तो आप थोड़ा अंदाजा दे सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक डिक्लाइन कितना हुआ है
और वो कितने प्राइस इंक्रीज से ऑफसेट हुआ है अभी तक compared to let's say 2020 का अगर baseline है? क्योंकि we make a lot of products, तो हमारे ना जो कई प्रोडक्ट्स हैं जिसको इम्पल्स बाय है, तो उनमें उसमें ज्यादा हिट आई है, एंड लकीली जो जैसे केचअप्स है फॉर एग्जांपल, उनमें इम्प्रूवमेंट आ गई है, या टेक होम प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट आई है, बट ऑब्वियसली जो हिट आई है इट्स मच लार्जर देन जिसमें इम्प्रूवमेंट आई है. सो इसका वॉल्यूमेट्रिक भी जरा मुश्किल है, जस्ट बिकॉज वी हैव सो मेनी प्रोडक्ट्स. So basically, you're saying that the impulse purchases have been negatively affected by COVID because people aren't able to go shopping as much. Is that right? See, like the canteen, schools, these were the places we used to sell a lot of juice. Understood. The zoos, the bus addas, the airports. Now all these are shut. So those products, which are the smaller size products, they've been hit. Somehow the glass bottle hasn't been hit, although that's also a small for the impulse buy. But anyway, so one of the other products have actually improved. So Understood. There's a very clear indication that what's going around is basically COVID factor, because the liter is going up, the big ketchup is going up. So there's a lot to do with COVID phenomena. Understood. So would you feel that you'd be comfortable, we certainly hope for it, but do you think that once the effects of COVID recede, that you will begin to pick up the impulse purchases again while being able to maintain the underlying base load that you've had despite COVID, so that we should have a much better year going forward? Is that something that's a fair statement? Absolutely. That's our hope, and that's what we actually think will and should happen, because there's a very clear, as I mentioned, a very clear picture in which very specifically the products that were very good in the schools, in the canteens, only those have been hit. Got it. When such a thing happens, the people work harder on the other products. So in the long run, this could actually become a blessing in disguise. But so the people are working hard in selling the ketchup and the squash. So these things have actually picked up. Understood. And G, I wanted to ask a little bit about marketing. Now, as you are probably well aware, for a company such as yours, and generally, much of what makes your company so successful is the strength of your brand, right? And, I note with obviously deep concern that, when you pull off your marketing and advertising, your being top of mind and your ability to continue to develop your market. I mean, you can imagine that, the multinationals like Nestle would never take a drastic cut in their marketing budget, because the long-term consequences of that can be severe. Now, while I appreciate you guys are going back to having marketing this year, can you look back and say what the potential effect has been from you guys being absent in the marketing area for the last couple of years? So, as I mentioned, for us, it's not been such a big factor. That shows that we have very loyal customers. So it's to do with our quality or our specific taste advantage that it has not hit us. And that's why, starting marketing is not, I can start it tomorrow. Mm-hmm. So obviously things were not going in the wrong direction. That's why we didn't start it. But now, because of a few good things that have happened in the very recent past, we're going to make sure we do everything just like the multinationals do. And this will just give us the extra muscle that is required. So Pakistan football, for example. So Pakistanis are very loyal customers, unlike many other countries. This is what we've noticed. And if you're a local brand here, sometimes even if you switch a little for a while, silence, people maybe miss you more. So it's not so simple that, all of a sudden the hard work of
40 years has just, evaporated. I understand. It was a very calculated decision. Things Yeah. were going, it was very, like almost touching hyperinflation. The sugar price had gone up from the 50s to the 90s, so much tax. There's a water tax that came also. One day we woke up and we find out there's a water tax. So there's a lot of disruption going around. So in such strenuous times to also, flaunting advertisements was not the right decision. And we are very sure of the strength of our brand. So I completely agree with you. And, the Pakistani government policies are about as consistent as the weather in London. Exactly. What I would suggest, however, though, is, when you are absent, what happens is as people, as children grow and, as you know, none of our children have been going to school. It's very important that you don't develop a sort of a missing, like, couple of years gap in the profile of your customers. So, the 3s and the 5s and the 7-year-olds who are used to doing it, suddenly let's not have a situation where there's a, class 4 and class 5, those guys weren't exposed to the marketing and the development and then for the long-term recall of the brand. So I completely understand what you did, and the need of the hour was, so now we're going to start the survival of the company. Exactly. So within this month, we're going to start. It's the first month, and that our first meeting this year was on this topic because, that's what's going to come next. Exactly. We already have a good library of commercials we've made. Everything takes time. So, but we already have that. Now we're just going to start from within this month. Understood. And last question from my side. So in the last few years, as somebody's already mentioned, you did about 1.5 billion rupees of CapEx. I was just trying to get an understanding of what your non-expansion related maintenance CapEx expense is on an annual basis. Sort of on average, roughly, what do you expect your maintenance CapEx budget to be? I don't have any idea right now. Sorry? तो इस वक्त बताना मुश्किल होगा. रिपेयर्स मेंटेनेंस तो चलती रहती हैं कुछ ना कुछ. आप बाल पास फिगर मेरे पास सामने इस वक्त नहीं है. ठीक है. तो लेकिन आपके हिस्टोरिकल नंबर से आपके हिस्टोरिकल नंबर से हमें लगता है तकरीबन 250 मिलियन लगभग हो सकता है. क्या ये do you believe that that's too high, too low? की बात कर रहे हैं या दूसरे नॉर्मल मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं? So normal maintenance capex, just the you capitalize. ये ज्यादा है. ठीक है. तो 100 directionally about 100 million. इसके आसपास होगी ये. Just a rough idea so that we have an understanding of how much is capitalized on an annual basis. That's just a rough idea. We will not hold you to it. One of our machines, just for information, one of our machines in one of our factories, it was actually given the crown for being the best performing machine in the whole world. Asia, it's actually in the whole world. Like even we did better than many of the Chinese also. So there's a lot of talent in this country, and in some things these people really can beat many places. Well, I'm sure it helps that they're encouraged and given the liberty and the room to do so by the management, which is a great sign. Thank you, Ji. No further questions. Thank you. Thanks, Heather. We can take one last question from Abdullah. Please. Hello, thank you for having me on the call. Sir, मेरा एक ही question था related to your fruit inventory procurement. तो आपका जो मैंगो पल्प है वो आप बिगनिंग ऑफ द ईयर के लिए पूरे ईयर के लिए प्रोक्योर कर लेते हैं या थ्रू आउट द ईयर प्रोक्योरमेंट चलती रहती है? एंड सेकेंडली उसकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स क्या है? मतलब आपको कोल्ड स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है उसके लिए या नॉर्मल स्टोरेज में हो जाता है? उसकी कितनी कॉस्ट वगैरह होती है? मैंगो पल्प जो है वो आपको पता ही है, ये फ्रूट जो है वो 1 से 1.5 महीना मिलता है जब ये सबसे रॉक बॉटम प्राइसेस चल रहा होता है. तो हम वो एक ही दफ़ा प्रोक्योर करते हैं, उसकी पल्पिंग करते हैं और उसको स्टोरेज कर लेते हैं. अपने पास हमारे पास भी फैसिलिटीज़ हैं और रेंटेड फैसिलिटीज़ भी हैं बाहर. तो वो हम रेंट पे करके पूरा साल की रिक्वायरमेंट एक ही दफ़ा पूरी कर लेते हैं.
और एक कोल्ड स्टोर में रखते हैं और उधर इट नीड्स लाइक 0 to 4 डिग्री टेम्परेचर एट लीस्ट. So it's always in cold stores. You can't put it outside. Okay, sir. Thank you. Rohan, please put forward your question. अस्सलाम वालेकुम सर मुझे आपसे पूछनी थी व्हाट इज द रिस्पेक्टिव proportion of juices ketchup, and my second question is what is the market share of your products in their respective categories? Thank you. वो हम बता ही नहीं सकते जरा सा. नहीं ये बताओ जी, अपना क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज. हेलो हाँ मैं आपसे कह था कि व्हाट इज द respective portion of juices, ketchup and other segments like jam, pickle in your sales mix, and what is the ये market? आप हमारी प्रोडक्शन नंबर से जरा चेक कर लें, वहां से आइडिया ले लीजिएगा. इस वक्त मेरे सामने नहीं है डेटा कि मैं आपको बता सकूं कि कौन सा आइटम का कौन से क्या परसेंटेज है. सेगमेंट रिपोर्टिंग देख लें आप इसमें हमारे फाइनेंशियल्स में. अच्छा आप मार्केट शेयर बता सकते हैं? जस्ट रफ आइडियाज इन जूसेस एंड थोड़ा सा आइडिया दे दिए थे इन्होंने, अराउंड 20% के आसपास है, लेकिन बाकियों में देना मुश्किल है क्योंकि हमारा अब केचप की जो मार्केट प्लेस है वो डिफरेंट है, इसके अलावा पिकल्स के डिफरेंट है, स्क्वाशेस के डिफरेंट है. तो हर कंपनी, हमारे पास ही इतनी बड़ी रेंज है, बाकियों के पास इतनी बड़ी रेंजेस भी नहीं. So basically मतलब केचप में ना हम नंबर 3 होंगे एज अ ब्रांड. तो इसका मतलब है मतलब 18-20 के करीब होंगे केचप में. टेट्रा पैक्स में भी 20s में है, उसमें हम होंगे अराउंड आफ्टर 25 to 30 के करीब होंगे. बट बाकी प्रोडक्ट्स का तो मुश्किल है. यहाँ पे वो AC नीलसन के डाटाज भी उस तरह अवेलेबल नहीं है, काफ़ी देर से किसी ने कराया भी नहीं है. अब यू नो द कंपनीज इवन लेफ्ट पाकिस्तान, सो बाकियों का ज़रा मुश्किल है बताना. हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज आ रही है. आई थिंक इट्स बीन कम्युनिकेटेड. ओके आई एम अनम्यूटिंग. शबी प्लीज पुट फॉरवर्ड योर क्वेश्चन. जी अस्सलाम वालेकुम. मुझे बस ये पूछना था कि आप लोगों ने जो मेंशन किया है कि रिगार्डिंग 2 न्यू प्रोडक्ट्स, एक तो हैप्पी फार्म्स का आप लोगों ने मेंशन किया है विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स यू विल बी लॉन्चिंग इट, और दूसरा आपने ऑब्वियसली एक वो मेंशन किया अपना मेयोनीज आपने मेंशन किया. तो इन 2 प्रोडक्ट्स को अगर मतलब देखते हुए आप टॉप लाइन कितनी नेक्स्ट ईयर की टारगेट कर रहे हैं, और इन दोनों से ये जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं इन दोनों से कितना मतलब फर्स्ट ईयर में कितना टारगेट आप रख रहे हैं कि कितना तक टॉप लाइन में ऐड कर देंगे ये दोनों? मार्केट साइज तो मेयोनीज का जो है वो यू नो लाइक केचप के बराबर है. तो बट फर्स्ट ईयर में इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू आंसर दिस ऑन द मेयोनीज फैक्टर. बट दूसरे में इन टेट्रा पैक कार्टन्स में हम बात करते हैं तो उसमें वी हैव लाइक लीटर में हमें यू नो वी आर बेंचमार्किंग के 10 मिलियन पैक्स होने चाहिए कम से कम 1 लीटर के हमारे जो हमें बेचने चाहिए. और इसी तरह छोटे में तो ज़रा ज़्यादा ही है, उसमें लाइक अराउंड 50 मिलियन होंगे 200 ml में. मेयोनीज में इट्स अ लिटिल अर्ली, अभी हम उसमें बिल्कुल इन्फेंसी स्टेज में है. मे बी इन लाइक 2 months वी कुड गिव यू अ बेटर नंबर और बेटर प्रेडिक्शन. बट उसमें केचप को हमने बेंचमार्क बनाया. वी शुड यू नो इन 5 years टाइम वी शुड बी सेलिंग एज मच एज वी सेल केचप. Okay, thank you very much. Sir, I had a couple of questions. उसमें सबसे पहले तो सर आपकी जो परचेजेस हैं उसमें से जो फ्रूट्स हैं वो बाहर से कितने आप लोग प्रोक्योर करते हैं और अपनी सेल्फ मतलब प्रोक्योरमेंट कितनी है फार्म से? सारे बाहर से करते हैं.
सो सेल्फ हमारा जो फार्म है ना उसका भी क्योंकि कई बार एक्सपोर्ट अच्छा हो जाता है सो एंड इट्स नॉट क्लोज टू आवर ओन लोकेशन, तो कई बार वो डील नहीं बनती तो ज्यादातर बाहर से ही आता है। Alright. वैसे स्पॉइलेज काफी ज्यादा इम्प्रूव आप लोगों ने कर लिया है, काफी नीचे आ गया है, सो आई मीन what is the reason, what are the factors? टेक्नोलॉजी हैज रियली इम्प्रूव्ड रिसेंटली, और थोड़ा सा ना ये रोड नेटवर्क्स बहुत इम्प्रूव हुए हैं तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है क्योंकि दिस इज अ वेरी सेंसिटिव प्रोडक्ट। बट असल चीज़ है थोड़ा ये बैक एंड टेक्नोलॉजी में हमने इन्वेस्ट किया है, उससे बड़ा फायदा होता है। Alright. Sir, एक important चीज थी आपका, juices is a big segment and mango within that segment is also substantial. And you said that this year the rates were good. As in, what kind of an improvement did you see? If you can just give us a broad range in terms of pricing this year when you put, mango purchases. 5% के आसपास लास्ट ईयर से सस्ते हैं। 5% के आसपास सस्ते हैं। सर थोड़ी सी एक्सपोर्ट के ऊपर कोई नए प्रोडक्ट्स आप लोग ला रहे हैं, टारगेटिंग द एक्सपोर्ट मार्केट में? हम नए प्रोडक्ट्स नहीं ला रहे मगर हम नए कंट्रीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड हमारी फीडबैक अच्छी आ रही है। सो एक्सपोर्ट्स में हम काफ़ी फोकस करें। जब से रुपी डॉलर हुआ है ना, थोड़ा डिवैल्यू हुआ है हमारी करेंसी, तो वी बिकम वेरी कम्पिटिटिव। पहले टर्किश ब्रांड्स एक्चुअली बिकेम मच चीपर देन अस, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता था टू कम्पीट विद देम, बट नाउ हमारी वो पैरिटी आ रही है। सो एक्सपोर्ट्स इज अ गुड मार्केट, वी आर रियली फोकसिंग अलॉट ऑन इट। इसमें मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं एंड अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो एक्सपोर्ट्स में यू कैन गेट गुड, लाइक यूरोप वगैरह से भी अच्छे ऑर्डर्स आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि अफ्रीका में ही बेचो। सो उस पर हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं एंड इसमें वी आर, मतलब आई एम लुकिंग एट इट माई सेल्फ, आई विल इसमें काफ़ी स्कोप है। सर एक पैकेजिंग रिलेटेड क्वेश्चन था कि पैकेजिंग हैज is consistently increasing. So I was talking to a couple of players and they were saying कि जो packaging thicknesses हैं of PET bottles and glass bottles, उनके अंदर भी they have this room for making adjustments. So is it true for the packaging that you're using? Or so in the PET bottle जो हमारी इतनी ज्यादा नहीं है मगर उसमें हमारे स्क्वॉशेस वगैरह होते हैं, उसमें ये होता है, बट टेट्रा पैक में ये नहीं है ऑप्शन, और बाकियों में भी ग्लास में भी ऐसा नहीं है इतना। सो हमारे लिए वो इज नॉट अ बिग बिजनेस, इट इज नॉट अ बिग सेव, क्योंकि सिर्फ हमारे वो पीईटी बॉटल में वो हो सकता है, वो हमारा काफी कम है। सही, ओके। I think, sir, that's about it from my side as well. You have taken a lot of questions. In the essence of time, I think हमारा जो allotted time है वो भी पूरा हो गया है. So I'd like to thank you, Mani Saab, Faisal Saab, Rashad Saab, for taking out time and joining us on this call. It was very informative, and also I would like to thank all the participants that had joined the meeting. So hopefully we will be hosting other such calls for all our clients as well. So thank you so much guys for joining us. So